Hi friends, welcome on this panel discussion, and this is related to the interview of a deputy manager position in State Bank of India. And as you know, there are certain specialist cadres जिसके लिए interviews अभी होने वाले हैं within a week, and the specialist cadres are largely related to technology domains, which is project management and delivery, and then there's infrastructure support and cloud operations, network operations, IT infrastructure, and system security, information security. ये profile हैं. And deputy manager is a position with some job experience, so all of you already are working in organizations and many of you have very vast experience और आपने बहुत से organizations में काम भी किया है. So this interview is made up of two components. One is technical part, another is behavioral part. Now technical part largely will be related to your job experience, in which they are going to ask you about your contribution to your organization, आपकी learning and how you are going to be an asset for the SBI, and what do you bring in terms of your skills to State Bank of India. Behavioral part में largely they are going to ask your behavioral traits in the actual job situations through case studies and all. ये आपका वो लोग पूछेंगे सारे के सारा. हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट पे आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड थी वो ऑलरेडी पैनल डिस्कशन में डिस्कस किया है. आज का डिस्कशन हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेंशन्ड है रिलेटेड टू आपका बिहेवियरल पार्ट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इफ यू सी द नोटिफिकेशन, दे हैव मेंशन्ड फॉर ऑल दीज प्रोफाइल्स सम कॉमनैलिटीज इन टर्म्स ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, because these jobs are related to troubleshooting, managing, handling the team members, implementing the things, collaborating with the vendors and the suppliers who are dealing with the technology domains. So there are couple of requirements from your profile. तो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बायोडाटा में क्या आपका रिफ्लेक्ट करना है, केस स्टडीज में क्या रिफ्लेक्ट करना है. सो विद मी इज माय टीम. सो वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, एंड we will discuss today about the behavioral part. This is our that session. So I come one by one and we discuss certain points. So first to start with, Shikha, you have made a wonderful video on behavioral requirements for this particular job profile. Yes, experience based job hai. And earlier whenever some interview comes, we see there's a HR interview, there's a technical interview. This time we are saying there's a technical interview, there's a behavioral interview. So instead of HR, they're using term behavioral. What do we mean by behavioral part? So behavioral is something that is job related personality and suitability. Okay. As क्योंकि कैंडिडेट्स आर एक्सपीरियंस्ड एंड उनसे ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि इतने सालों तक आप इतना एक्सपीरियंस आपने गेन किया फ्रॉम इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड इन बैंकिंग सेक्टर्स आल्सो, एंड नाउ दे आर कमिंग इन एसबीआई. सो व्हाट दे वुड बी बिहेवियरल अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग्स. कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, स्टेक होल्डर्स आर देयर, एज यू हैव मेंशन्ड, वेंडर्स आर देयर, सप्लायर्स आर देयर, एंड क्योंकि इसमें भी 4-5 रोल्स हैं अभी आपने डिस्कस किया, माइग्रेशन लाइक क्लाउड मैनेजमेंट, आईटी ऑपरेशंस एंड ऑल लाइक दैट. सो उसकी हर कहीं की कोई ना कोई कॉमन चीज है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट भी है. सो हर किसी का बिहेवियर अपनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा. दैट दे आर गोइंग टू बी चेक इट आउट. नंबर 1. नंबर 2, इसमें कुछ ना कुछ 4-5 पैरामीटर्स आते हैं जो बहुत ही लाइक कॉमन है. हाँ, दैट इज लीडरशिप आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग्स आ गया, योर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. अब नाउ कम्युनिकेशन विद योर टीम इज वन थिंग, but out of your team, that is your vendors, suppliers, stakeholders, that is another thing that is going to be check it out. Stress management and pressure handling, that is very important, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए जा रहे हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, एंड उस पोस्ट के लिए वो आपकी मॉनिटरिंग सुपरविजन को भी उसमें लेके आता है, जिसमें आपको स्ट्रेस और प्रेशर दोनों हैंडल करने होते हैं. राइट, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग थिंग्स डन ऑन टाइम, इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली, इट्स नॉट ऑलवेज टू मेक लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन को चेकआउट करते हैं. ये आता है आपका बिहेवियर पार्ट. और सिचुएशनल क्वेश्चंस जो लाइक एज मैम विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस. सिचुएशनल पार्ट, एक सिचुएशन जजमेंट एक ऐसी चीज होती है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया, एंड इन द प्रेजेंट आल्सो, अभी आप क्या करने वाले हो, उनको रिलेट करके आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, उसमें भी सिचुएशन, योर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, योर लीडरशिप स्किल्स, teamwork, collaboration, ये सारी चीजें check. Okay, so Shikha, if some candidate is listening to us, तो can we tell him that for these job profiles, जो हमने technical job profile mention किए, इन job profiles के लिए these are the 5-6 most important traits जो आपकी पर्सनैलिटी में वहाँ चेक होंगे. कैन वी मेंशन देम, दोस ट्रेट्स व्हिच वी वर डिस्कसिंग? एग्जैक्टली सर, लाइक वी कैन मेंशन कुछ तो इसमें से. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस. नंबर 2, योर लीडरशिप एंड योर कोऑर्डिनेशन. कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इज द थर्ड पार्ट. एंड नंबर 4 यू कैन से इट कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग.
These are some traits you should have if you are experienced, like आपके पास 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है एंड आप ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में हो या आप किसी डिफरेंट सेक्टर से भी आ रहे हो, सो ये ट्रेड्स वो आपके जरूर चेक करेंगे और वो आपके वे ऑफ टॉकिंग से भी पता लग जाएगा एंड हैंडल द सिचुएशंस आल्सो. Okay, so that is wonderful. So friends, there are some traits required जो हर जॉब के लिए होते हैं, इस जॉब के लिए भी हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल तो जॉब है और स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना ये 24/7 एक्टिविटी है, जिसमें आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज अ कस्टमर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेयर you are doing online transaction in the midnight and the things are not working. Obviously there will be chaos, and being such reputed public sector, largest public sector bank in India, so obviously there are expectations from the customers, and technical team has to be always responsive and always ready for that. Now I come to you Shruti, related to resume and biodata. तो ये दो टर्म मेरे को तो सेम ही लगता है, resume and biodata, they are asking both. यस सर. तो क्या है, जब इनिशियली स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था तो उन्होंने वहाँ पे अपने एप्लीकेंट फॉर्म के साथ अपना रेज्यूमे, सीवी, प्रोफेशनल रेज्यूमे भी सबमिट किया था, और बायोडाटा फॉर्म है जो अभी एसबीआई वालों ने इनको बायोडाटा फॉर्म भी फिल करने को दिया है, साथ में इन्होंने रेज्यूमे फिर से मांगा है. तो डिफरेंट है, बायोडाटा में थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, फ्रॉम योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, इवन इंटरेस्ट और हर चीज, एजुकेशन बैकग्राउंड और वट एवर इन्फॉर्मेशन दे वांटेड टू हैव इट फ्रॉम यू, दे आर टॉकिंग अबाउट इट. एंड रेज्यूमे आपका प्रोफेशनल रेज्यूमे हो गया जो आप खुद क्यूरेट करके आप इनको सबमिट करते हैं. Okay, so one question, and I am asking question on behalf of all the candidates only. Do they ask question on the basis of the resume, something like this on the table? क्या उनके टेबल पे पड़ा होता है resume and biodata, and they are going to ask you question from there only, or how it goes? सर दोनों ही इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, बायोडाटा फॉर्म भी होगा और आपका रेज्यूमे भी होगा. रेज्यूमे आपने पहले भी सबमिट किया था उनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और अब अभी भी आप सबमिट करोगे, बट वो सेम ही होगा. हमें असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करके आए थे अभी, उन्होंने बिल्कुल ये बोला है कि हमारा ओल्ड रेज्यूमे ही अभी भी है, चल रहा है, एंड हमें वही कन्वे करना है आगे भी, तो हम न्यू रेज्यूमे फॉर्म करके नहीं अपलोड करेंगे इस बार भी. तो दोनों ही फॉर्म्स है, और हम मेक श्योर करते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर देंगे, हम वही कॉन्फिडेंस से उसी के बारे में बात करें जो भी हमने टर्म्स वहां से पिक करी है, बिकॉज इंटरव्यूअर आपकी उन्हीं टर्म्स को बेसिकली कैच करेगा और वो आगे क्वेश्चंस भी उसी से पुट अप करेगा. Okay, now we were seeing the biodata. It's a lengthy document. I mean, कुछ pages हैं इसमें. Yes. If you as mentor, if you have to tell which one is the most important section from where questions can come in interview? सर एक्सपीरियंस सेक्शन है Okay. टेक्निकली, बिकॉज इफ यू कैन सी लोग विद इन 5 years to 15 years का भी एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, बट हम इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो 8+ एक्सपीरियंस दे आर आस्किंग फॉर इट. सो इतना सारे एक्सपीरियंस के बाद आप सिर्फ जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस पुट इन Okay. करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सपीरियंस सेक्शन जो भी आप रेलेवेंट अपने बायोडाटा फॉर्म में पुट करोगे, आई वुड से फोकस ऑन दैट स्पेशली, और उसके बाद आपकी स्किल सेक्शन जो सेकंड इंपॉर्टेंट डिटेल है. Because it is experience based job, so needless to say experience is the most important. And Shruti, as we were discussing yesterday's case of some candidate, he was having vast experience in many companies, and he was asking whether I should mention my entire experience, which may take 2 pages. So कितना experience mention करें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा vast experience है? Number 2 related question है कि let's say cloud operations की requirement है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, आप उसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो इससे अलग भी है, विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर क्लाउड ऑपरेशंस. सो शुड यू मेंशन दैट एक्सपीरियंस विच इज नॉट रिलेटेड टू क्लाउड ऑपरेशंस, बिकॉज इट इज द बायोडाटा गोइंग टू एसबीआई एंड दे आर लुकिंग यू फॉर क्लाउड ऑपरेशंस. तो आपका एक्सपीरियंस उसके अलावा भी है, तो क्या आपको उसको मेंशन करना चाहिए और क्या आपको सारा एक्सपीरियंस मेंशन कर देना चाहिए? हाउ टू डिसाइड दैट? सर मोस्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंस आई वुड से कि हमें वही मेंशन करना चाहिए. आपके रेज्यूमे में तो आपने सारे यूजुअली एक्सपीरियंस मेंशन करे ही हैं, क्योंकि आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी सबमिट किया था, बट जो बायोडाटा फॉर्म है उसके अंदर आप अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही शो करें. अगर आपके पास स्किल्स है, रिक्वायरमेंट्स है, आपने डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स चेक करके ही फॉर्म फिल किया था, जो रिलेटेबल जितनी भी रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप वो अपलोड कर दो. बट आपके रेज्यूमे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारे एक्सपीरियंस बेस्ड होता ही है. जो आपको लग रहा है कि ओके ये मेरी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं मैच करती है इससे, वो तो आप लीव आउट ही कर दो. आप फोकस करो उन्हीं डिटेल्स पे, उन्हीं कीवर्ड्स पे बेसिकली जो रिक्वायरमेंट मैच करती है. Okay, good. Now I come to Shubha ma'am, I come to you, and first most important and predictable question is introduction.
इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है पूरे इंटरव्यू को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुल करने के लिए. नाउ दे मेंशन वेदर यू कैन यू वांट टू अपीयर इन इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन. उन्होंने पूछा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हैं बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एवरीवेयर इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया. सो इंट्रोडक्शन फॉर एक्सपीरियंस्ड बेस्ड पीपल, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? बिकॉज आई गिव यू माई एग्जाम्पल विद वन ऑफ माई केस विच आई वॉज टेकिंग yesterday. That candidate was introducing himself for not less than 5-10 minutes because he was talking about everything he has done in his career. Right. So what should be the format of introduction? So the major problem which I also was facing when I was taking the snap sessions is कि they are having a lot of experience, बहुत अच्छा experience है उनके पास, and I think उनको आके वहाँ पे CV को read करना है. As ma'am mentioned कि हमें relevant information को ही target करना चाहिए, and there's a proper structure to introduce yourself. The very first thing is आप अपना पहले आप read कीजिए सबको. जैसे उनको ये भी query होती है कि जैसे रूम में enter किया पहले women को wish करना है, male को wish करना है. So when we have a detailed video for that कि आप पहले आप पूछ के आइए उनसे, then you just take a permission, you just greet everyone, like not individually, एक एक करके greet नहीं करना, but पहले आपने जैसे women को greet कर दिया, all the female ones, and then the male ones, right? उसके बाद आप जब structure करते हैं, पहले आपने wishing कर दिया, then you have to introduce yourself in an ascending or descending order. Okay. Ascending it could be that okay, my name is this, okay, I am this, I hail from city, जो भी आपकी city आ जाती है, आपने कुछ अपना grad के basis पे कुछ भी आपने किया है, वो आपने generic सा बता दिया. ये 3 lines होती हैं जो generic होती है. उसके बाद आ जाता है coming to my professionally, or you can say I am coming from a professionally skilled enthusiast background. फिर आप अपने background को चाहे आप short में बता दीजिए, चाहे जो आप current कर रहे हैं, जो relevant है. सपोज आप क्लाउड में जा रहे हैं, ठीक है, आप क्लाउड स्पोर्ट पे जा रहे हैं, इंफ्रा में जा रहे हैं, तो आप उनके बेसिस पे आप कुछ कंटेंट अपना इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं. सो बेसिकली इट इज अबाउट द रेलेवेंसी एंड द इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 1 minute. According to me, it could be maximum to maximum. If you are very much stretching it out, आप 1.5 तक ले जाओ. बट वो ज्यादा आपके इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, उनके पास CV है, उनके पास बायोडाटा फॉर्म है, क्यों आपको इतना इंट्रोडक्शन को स्ट्रेच करना? तो आप या डिसेंडिंग में चलिए या असेंडिंग में चलिए. More than 1 minute is not required. 1 minute is sufficient. They are just checking your confidence. And the most important thing is आप क्या डिस्कस करेंगे अपना पूरा HR में, वो इंट्रो का वो एक पार्ट डिसाइड कीजिए. जिसपे आप चाहते हैं डिस्कशन करना चाहते हैं, वहां पे आप अपनी इंट्रोडक्शन को एंड कीजिए. So that is the format of introduction. Okay, so as we always tell candidates that you should give more chance to the interviewer to ask you question rather than कि आप 10 मिनट तक आप ही बोलते रहे तो उनको चांस नहीं मिलेगा क्वेश्चन पूछने का. नंबर 2, एज यू मेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं उसको बताना सबको, यू फील लाइक टेलिंग कि मेरे पास है मैं बताऊं, तो ऐसा नहीं कि वो पूछेंगे नहीं, आप वहां पे छोड़ दें जहां से नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड वो पूछेगा. सो दे आर ऑल्सो हैविंग यू नो क्वेरीज, दे आर इंक्विजिटिव, दे वांट टू आस्क मोर अबाउट यू. तो आप उनकी उसको अराउज करें, इंक्विजिटिवनेस को आप कुछ जगह पे छोड़ दें अपना एक्सपीरियंस ले जाके कि दिस इज व्हाट आई हैव डन. सो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन. अब मेरे को ये लगता है कि अनलेस अंटिल यू हैव समथिंग एल्स टू टेल, आपका जो प्रेजेंट जॉब एक्सपीरियंस है जो SBI के लिए भी रेलिवेंट है. जैसे सपोज यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर क्लाउड ऑपरेशंस डिप्टी मैनेजर पोस्ट, एंड आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है, जो रिसेंट एक्सपीरियंस जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो क्लाउड ऑपरेशन से ही है. तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू मेंशन दैट प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन क्लाउड ऑपरेशन, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, बिकॉज पैनल विल फील कि हाँ फिर मैं इससे ज्यादा पूछता हूँ. एंड आई डोंट थिंक जॉब एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, जैसे हमारे कैंडिडेट्स होते हैं कि अपने हॉबीज इंटरेस्ट बता दें, 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स, दैट एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड. पेरेंट्स के बैकग्राउंड बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिबलिंग बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको डायरेक्ट उस पे आ जाना चाहिए. एंड एज यू सेड 1 minute 1.5 minute उसमें बहुत रेलिवेंट बात ही बोला जाए तो देन इट मेक सेंस. एंड हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोला जा सकता है. बट आई वुड प्रेफर सर कि आप इंट्रोडक्शन एक ही लैंग्वेज में दीजिए. हाँ जी. कई आते हैं जो स्टार्ट द एस्पिरेंट स्टार्ट विद एन इंग्लिश लैंग्वेज, बीच में वो भूल जाते हैं, देन दे स्टार्ट विद द हिंदी. उससे आपका ही फ्लो डिस्टरप्ट होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर इंट्रोडक्शन इज इट शुड नॉट बी वेरी फास्ट, इट शुड नॉट बी वेरी स्लो, इट शुड बी हैविंग अ मीडियम पेस. और वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द स्टार्ट, द हाईलाइट ऑफ योर एंटायर इंटरव्यू. तो यू हैव टू बी इन अ वेरी, यू कैन से आपका फ्लो प्रॉपर हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो. इंटेलिजेंस से भी ज्यादा आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द डिप्टी मैनेजर. तो एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया शुभा कि आई वाज थिंकिंग दैट डिप्टी मैनेजर पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, दे आर वेरी हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, 10 years, 12 years, एंड दे विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस बाय वर्च्यू ऑफ मैच्योरिटी, जो उन्होंने अटेन किया है, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं और उनमें होगा. But when we started having the snaps and mocks with these people, we found that they are getting nervous. They are not that confident. Body language is not that confident. And
here I want to share something like this confidence and all this fluency, this comes with the practice. It does not come with the experience only. जैसे अगर आपने कभी बहुत टाइम से आप गए नहीं है, इंटरव्यूज नहीं दिया है, एंड दिस इज योर ड्रीम जॉब एंड ये प्रेशर इस वजह से भी आता है कि ये मेरे को चाहिए, जैसे मैनी वर सेइंग कि सर मेरे को ये चाहिए, आई वांट टू गेट इनटू दिस, सो टेल मी व्हाट शुड आई डू सो दैट मेरे को मिल जाए. तो जब ऐसा आपके ऊपर एक अर्जेंसी होती है तो आपके ऊपर प्रेशर होता है. जब प्रेशर होता है तो आप नर्वस भी होते हैं, और नर्वस में आप फंबल भी करते हैं. तो कॉन्फिडेंस के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, यू रिमूव दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्ट्रेस ऑन यू कि मेरे को चाहिए, मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा. नंबर 2, प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा. मेरा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे है शुभ, दैट इज रिलेटेड टू केस स्टडीज. नाउ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एंड असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए भी इंटरव्यू हुए थे, दो दैट नो एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट, सो दे जनरेटेड सम केस स्टडीज एंड दे पुट देम इन कैंडिडेट्स इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन टू नो हाउ ही विल रिएक्ट, एंड हाउ ही विल रिएक्ट उससे पता लगेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका ट्रेड्स कैसे हैं. तो लीडरशिप ट्रेड पता करने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहां पे आप अगर लीडरशिप ट्रेड्स आप में है तो आप आंसर सही दे देंगे और आप बता देंगे मैंने ऐसा किया. केस स्टडीज का क्या रेलिवेंस है इस इंटरव्यू के लिए, और टिपिकली कैसी केस स्टडीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू टेल कि केस स्टडीज क्यों रेलेवेंट है. आप एक पोस्ट पे जा रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी को जज कर रहे हैं, आपने पहले भी किसी जगह पे काम किया है, वहां पे आपने सबऑर्डिनेट रिलेशंस मेंटेन किए हैं, जूनियर रिलेशंस जो भी आपने मेंटेन किया है, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स फेस की हैं, आपका उस टाइम पे बिहेवियर पैटर्न कैसा था. दे जस्ट वांट टू नो कि आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं उस सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाए, बिकॉज इट्स अ पोजीशन व्हिच रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ यू कैन से लीडरशिप स्किल्स. कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको ऑन स्पॉट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं. अब आपको मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि नेटवर्क क्राइसिस हो गया, नेटवर्क आउटेज हो गया, ठीक है. अब व्हेन देयर इज देयर कि अब वहां पे एज अ डिप्टी मैनेजर यू हैव टू कम इन फ्रंट कि आप क्या करेंगे उस केस में. देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस आल्सो. आपने शायद अपने प्रीवियस जहां पे भी आपने काम किया है वहां पे भी फेस किया हो कि नेटवर्क की वही प्रॉब्लम होती है, एंड वी हैव सीन कि कई बार डिस्ट्रप्शंस हो सकता है, कनेक्टिविटी एरर होता है, एंड द कस्टमर they are very much you can say full of you can say anger, गुस्से में भी आ जाते हैं कि भाई हमारा चल नहीं रहा है, what should we do in that cases. तो वो आपको इस सिचुएशन में दे देते हैं कि सपोज कीजिए कि बेसिकली है कि द नेटवर्क आउटेजेस है, एंड अब आप चैलेंज क्या क्या फेस करेंगे. तो चैलेंजेस बेसिकली इट वुड बी आई थिंक कि आपको पहले तो रूट कॉज, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्यों हुआ है, आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि हाँ मैम पहले भी हमने ये चीजें फेस की हैं, अपने पुराने जॉब में भी फेस की हैं, तो हम पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं. वंस वी आइडेंटिफाई द रूट कॉज इट वुड बी कि हम वो नेटवर्क कनेक्टिविटी को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं. सपोज हम वेंडर बुलाते हैं, हम क्या चीज करते हैं, या हमने पहले ही कोई बैकअप प्लान पे कुछ चीजें रखी होती है. सपोज करो हमने कोई स्टेक होल्डर्स या किसी से बात करने के लिए कन्वेंस रखी हुई है, सो वी आर डीलिंग विद दैट. ऑल्सो आपने देखा होगा कभी भी कहीं पे भी नेटवर्क आउटेज होता है तो दे हैव अ चैनल ऑल्सो जहां से वो फ्लो इन्फॉर्मेशन फ्लो करवा देते हैं, दैट द कस्टमर्स डू नॉट क्रिएट अ पैनिक ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमने बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में देखा है दैट द पीपल आर बीइंग यू कैन से दे कम टू पैनिक, यार हमारा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया. So that is something very common, and that is something to make the customers you can say calm and in peace. तो उसके क्या impacts आते हैं, क्या challenges आते हैं, आपने डील किया था, आपने कैसे उसको ओवरकम किया था, ये कुछ केस स्टडीज होती है जो पूछी जाती है. इट कुड बी दिस, इट कुड बी कि जैसे अब कुछ ऑपरेशंस है, हम इन हाउस से अब क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लाउड ऑपरेशंस है, अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो उसके बेसिस पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे हम उसके पॉजिटिव आउटकम्स को कैसे हम डील कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वन अनदर यू कैन से द केस स्टडीज. देयर नंबर ऑफ केस स्टडीज सर व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, द डॉक्यूमेंटेशन आल्सो. सो आई वोंट बी इलैबोरेटिंग इट आउट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आंसर्स कुड बी लिटिल डिफरेंट आल्सो. आपने जैसे सपोज कीजिए रियल में सिचुएशन फेस की थी, आपने कुछ और चीजों को इंप्लीमेंट किया था, डिस्कस विद अस, क्योंकि आपका एक आंसर का फॉर्मेट सही होना चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग एंड इट कुड बी वेरी इनोवेटिव आइडियाज, मोस्ट आर वेलकम. What we have provided is we have provided the skeleton of the answers in already in our documentations, which will be helping the students. And it could be also in the generic forms की suppose कीजिए आप इस position पे जा रहे हैं और आपने किसी और बैंक के साथ डील करना है, कल को के ये बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का था, तो आपका उन पे व्यू पॉइंट क्या था. तो आई हैव आस्क्ड सर्टेन स्टूडेंट्स अबाउट द व्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट आल्सो, कि हाउ डू दे ब्रेनस्टॉर्म इन दैट डायरेक्शन. दे आर सेइंग नहीं प्राइवेटाइज कर दिया तो मैम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और दे स्टार्ट टॉकिंग मैम वो जो लोग काम करते हैं उनको डीए नहीं मिलेगा. तो डू यू थिंक दैट इज वेरी मच रेलेवेंट टू टॉक अबाउट? नहीं, बल्कि हमारे वेयर आवर गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन टू सम एक्सटेंट, वी शुड बी न्यूट्रल इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो ऐसी केस स्टडीज भी पूछी जा सकती हैं, एंड रिलेटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाज वेरी कॉमन. तो इस तरह से ये नहीं है कि सिर्फ एसबीआई के रिलेटेड,
वो कुछ और डिस्कशंस, बजट के डिस्कशंस, बजट प्लान्स पे डिस्कशंस, बहुत चीजें होती हैं। और द थिंग इज बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर आइडियाज, आपका बेसिक होना चाहिए। नेगेटिविज्म तो आपने शो ही नहीं करनी है, ना ही अपने पुराने ऑफिस के कल्चर की, ना ही प्रेजेंट की। कुछ भी आपने नेगेटिव नहीं बोलना है। हैव द बेस्ट ऑफ द कंटेंट कि हम मैम ये चैलेंज है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है, ऐसे ऐसे। मतलब आप एक प्रॉपर प्लान और सीक्वेंस को जरूर लीजिए और हमेशा 10 सेकंड्स का पॉज लीजिए व्हेनेवर सम केस स्टडी इज गिवन टू यू, कि दैट यू शुड बी थिंकिंग एट दैट टाइम। वहां पे लगना भी चाहिए आप सोच रहे हैं, अपने प्लान को बनाइए एंड देन यू जस्ट एग्जीक्यूट इट इन फ्रंट ऑफ द पैनल कि कैसे बोलना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि इस तरह से आप केस स्टडीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एज यू राइटली सेड, प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन ना बहुत टिकलिश हो सकते हैं, जैसे आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंड सडनली क्वेश्चन कम्स, आपका अकाउंट, आपका कौन सा अकाउंट, बैंक में अकाउंट है आपका ना, आप SBI के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपने बोला HDFC में है। क्यों है? आपने बोला साहब मेरे सैलरी उस अकाउंट में आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन उसी में सैलरी देता है, सो व्हाई यू थिंक HDFC में देता है, SBI में क्यों नहीं देता? अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड उसका काम है क्वेश्चन पूछना, आपका आंसर करना। और जब आप ऐसा आंसर देते जाते हैं तो आप एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं एक एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये इवॉल्व हुआ। सो आई सेड आप इंफोसिस में जॉब कर रहे हैं, सर मेरा सैलरी तो HDFC में आता है या ICICI में आता है, आपने नाम लिया। सो SBI में क्यों नहीं आता है? सर इंफोसिस जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइवेट बैंक उसने चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? सर बिकॉज प्राइवेट बैंक शायद एफिशिएंट होते हैं। यू अंडरस्टैंड द ट्रैप नाउ? सो यू आर सिटिंग फॉर SBI इंटरव्यू एंड देन यू सेड इंफोसिस चोज ICICI बिकॉज इट इज अ प्राइवेट टू प्राइवेट बैंक एंड बिकॉज प्राइवेट बैंक की सर्विसेज अच्छी हैं एंड यू आर सिटिंग फॉर SBI। एंड मैं SBI का आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आपने एडमिट कर दिया कि ऐसा हो रहा है। फिर देना यहाँ से ओके, आपको लगता है कि कुछ बैंक्स में जो सैलरी है वो आपका इसमें भी आता है, SBI में आता है सैलरी, वहाँ से आता है। यस सर, गवर्नमेंट की सैलरी है SBI से आती है, SBI में आती है। मेरे फादर कैनरा बैंक में थे, मेरी सिस्टर इस बैंक में है, उन दोनों की सैलरी SBI से आती है। सो वाई SBI गवर्नमेंट की सैलरी SBI में क्यों आती है? क्योंकि सर गवर्नमेंट SBI को ही बिजनेस देना चाहती है। डज दैट मीन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू गिव बिजनेस टू प्राइवेट? यू अंडरस्टैंड? दे आर ट्रैप्स फ्रेंड्स। नथिंग अगेंस्ट, एज शुभे सेड, अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर। आप एटीट्यूड नहीं डिस्प्ले कर सकते। प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड। SBI इज द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। फर्स्ट एंड सेकंड आर प्राइवेट बैंक्स एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। तो आप SBI में क्यों आना चाहते हैं? इंफोसिस में जॉब कर रहे हो आप ऑलरेडी, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम है इंफोसिस का, SBI का नहीं है, तो क्यों आना चाहते हो आप? सो दैट एक्चुअली दीज आंसर्स आर, आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे फ्लुएंसी के साथ। आपका प्रेजेंटली जॉब टाइमिंग्स क्या है? आप बोलेंगे साहब मेरा रात को 10-11 बजे तक टाइम होता है। इज दैट द रीजन यू वांट टू कम टू SBI फॉर वर्क लाइफ बैलेंस व्हिच यू आर मेंशनिंग? यू कैन नॉट यूज टर्म्स work life balance and job security and all, you cannot use. So you need to give answer in some different way. Obviously we mentor you for that. हम आपको बताते हैं आंसर ऐसे करना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन वेयर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टिल इज अ फार क्राई एंड ड्रीम फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड quality of life of the citizen of India is very much related to financial inclusion, with this government came up with in 2014 when Jan Dhan Yojana start हुआ था, and we know that was the time when public sector banks came forward compromising their profits for Jan Dhan Yojana. Private sector banks did not fulfill that obligation that much. You want to be part of such kind of ecosystem, such kind of organization which eventually is working for upliftment of the socio-economic development level of the citizen of India. आपको सोचना पड़ेगा holistic, और ऐसा नहीं कि मैंने लिखा दिया, आपने लिख लिया, वहां जाके आपने वॉमिट कर दिया। नो, इट कैन नॉट बी। इट हैज टू बी लाइक यू फील इट, और फिर आप किसी भी लैंग्वेज में उसको बोलने और एग्जांपल के साथ बोलने कि साहब आप इंफोसिस छोड़ के जब आप स्टेट बैंक में आना चाह रहे हैं, इंफोसिस का क्रिटिसिज्म आप कर नहीं सकते। इंफोसिस इज अ प्राइड फॉर अवर कंट्री, इट हैज डन वेरी गुड फॉर अवर नेशन। आप अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को अलग बोल नहीं सकते, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएंगे एंड हाउ इट इज टू बी डन? Yeah, so I think it's a tea time for all of us, so we can have tea now. Any other question which we have left, Shikha? कोई question ऐसा? I would like to ask कि there was a candidate in morning today, so he has worked in Reserve Bank of India, then Axis Bank, and now is coming in SBI. Okay. So I have asked him कि why do you want to join SBI? कि आप SBI क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? और ऑलरेडी आप रिजर्व बैंक में भी काम कर चुके हो, एक्सिस में भी काम कर चुके हो। सो उसने आंसर किसी और डायरेक्शन में दिया उन्होंने। बेसिकली ही वाज टेलिंग मी कि मैं क्यों फिट हूं उसके लिए, तो मतलब दो क्वेश्चन को उन्होंने मिक्स कर दिया। इफ he has to answer in a very good manner इस क्वेश्चन के लिए, सो क्या करना चाहिए? एक्चुअली शिखा, ऐसे बहुत से केस स्टडीज हैं, ऐसे बहुत से इंडिविजुअल केस हैं, दैट इज व्हाई वी से इट इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड। वी नीड टू, बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसने RBI छोड़ा क्यों पहले, बिकॉज
स्टिल नॉट क्लियर टू मी कि अगर आरबीआई में था तो कौन सी पोजीशन में था। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का छोड़ना किस बेस पे जस्टिफाइड होता है, किस पे नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का छोड़ना कुछ रीजन पे जस्टिफाइड होता है विच एम्प्लॉयर इज गोइंग टू एक्सेप्ट, एंड दैट इज लर्निंग इंटरेस्ट, कि आप जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हो। सर आई वाज इंटरेस्टेड इन क्लाउड ऑपरेशंस बिकॉज आई वाज नोइंग कि द सिचुएशन इज गोना कम, जब इन प्रेमिसेस से टेक्नोलॉजी क्लाउड पे चली जाएगी। तो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ फ्यूचर में एज अ टेक्नोक्रेट, आई एम सीइंग कि मेरी ग्रोथ वहां पे है। तो मेरी जो पुरानी जॉब थी सर वो इसमें काम करता था, मैं नेटवर्किंग में काम करता था, मेरे को लगा कि अब क्लाउड का टाइम आ रहा है तो मैं चला गया। एम्प्लॉयर कुछ नहीं उसको ट्रबल आएगा, ही इज वेरी हैप्पी विद दैट, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्लाउड इंटरव्यू एंड आप क्लाउड के लिए जॉब छोड़ी थी। दूसरा हो सकता है कि साहब मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत मिली थी, मैं जिस डेजिग्नेशन पे था I was merely clerk in RBI and I have done engineering. You know, in India, I know so many of my students who are working as at the position of the clerks. Yes, sir. Because they want job, they want financial, security, and that the moment they get a good opportunity, they shift it. And shifting job is the right of everyone. There is nothing wrong in that. तो ऐसे कुछ reasons अगर आप justify करते हो तो nothing wrong in that. बट देर आर सर्टन रीजन विच आर नॉट जस्टिफाइड, लाइक कि सर मेरे को वहां सैलरी ज्यादा मिल रही थी, वो इसलिए जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि सैलरी जहां पे भी ज्यादा मिल रही है तो तुम पूरी लाइफ जॉब शिफ्टिंग करते रहोगे। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, सर मेरे को घर के पास था, अभी भी मैं तुम्हें कहीं भी पोस्ट कर सकता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं पंजाब से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को यहाँ पे जॉब मिली क्योंकि घर के पास थी, तो मैं एज एम्प्लॉयर देख रहा हूँ कि ये लड़का जॉब नहीं करेगा अगर मैं इसको तमिलनाडु डाल दूँ। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो नहीं दे सकते, कुछ रीजन हम दे सकते हैं। In nutshell, we can say कि job shifting in itself is not a problem if you justify it. Gap is not a problem if you justify it. तो आपको बस जस्टिफाई करना है, उसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम उसके साथ बैठेंगे। पहले वो एक्चुअल की क्या रीजन है उसका, फिर उसको 90% टाइम्स वो जो बताना चाहता है बता नहीं पाता, अदरवाइज रीजन जस्टिफाइड होते हैं उनके पास। लेकिन एज अ मेंटर हमारा बस ड्यूटी ये होता है कि भाई तू ये बात मत बोल, ट्रैप में फंस जाएगा। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी एंड जॉब सिक्योरिटी एक्चुअली इज द रीजन। फ्रेंड्स, वी आर टेलिंग ओपनली वर्क लाइफ बैलेंस एंड जॉब सिक्योरिटी इज द रीजन टू ज्वाइन गवर्नमेंट। बाकी हम बोलते हैं कि साहब सोशल मोटिव है, ये है। मैक्सिमम आई हैव सीन कि वो कोविड का एग्जांपल देके, ले ऑफ का एग्जांपल देंगे, एंड एवरीवन जितने भी आए हैं अभी तक, आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग वन आंसर, व्हाई यू वांट टू बी इन गवर्नमेंट सेक्टर। आपका गवर्नमेंट इंटरेस्ट है, आपने प्राइवेट में भी एक्सपोजर लिया है, तो हम प्राइवेट में ले ऑफ हो जाता है, कल को निकाल देंगे, इसलिए हम गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। तो इट इज नॉट द राइट वे टू स्पीक समथिंग। You should never criticize employer, previous employer. You should never criticize private sector. ऐसे टोटलिटी में क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। कई बार बोलते हैं एटीट्यूड, आज इधर बुराई कर रहे हो, कल आप इधर भी करोगे। नहीं शुभ, एक और चीज, मैं गवर्नमेंट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, बड़े लोग बोलते हैं कि साहब मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन अ फार्मर, नहीं जस्ट इमेजिन अ फार्मर, ही इज नीदर इन गवर्नमेंट जॉब नॉर इन प्राइवेट जॉब, ही इज एक्चुअली फार्मर, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे ज्यादा सर्विस मेरे को उसी का लगता है, इज फीडिंग एवरीबॉडी। सर आई स्टिल रिमेंबर अ क्वेश्चन, द पर्सन टोल्ड मैं नेशन को सर्व करना चाहता हूं, एंड दैट पर्सन आस्क्ड हिम कि तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लीजिए, व्हाई आर यू जस्ट कमिंग सीकिंग द जॉब, ऑब्वियसली दैट वुड बी मोर कंट्रीब्यूशन, बल्कि आप एक ज्वाइन करके सिर्फ आप खुद ही कैसे प्रमोट करेंगे कल को। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम द वे, ये वो चीजें जो आंसर नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। आप वी ऑलवेज से कि कंट्रोवर्शियल में मत फंसो, आप नॉर्मल एक डिसेंट आंसर्स और सीक्वेंस फॉलो कीजिए। Even one more question from this only sir, जैसे अब वो पर्सन है, जैसे you are told about an aspirant जो चेंज कर रहा है अपने सेगमेंट्स को, तो what about this कि सर जैसे सपोज कीजिए आप पहले किसी और सेक्टर में थे, फिर किसी और सेक्टर में, it is your multiple switches, even that is a negative count, yes not it is too much I say, but हाँ आपका एक नेगेटिव काउंट होता है, बार-बार स्विच कर रहे हैं। So what is your reason कि आप क्या अपने आप को स्विचिंग बार-बार चेंजेस क्यों कर रहे थे? To be very honest शुभ्या, इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि हमें केस टू केस बैठना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना काउंटर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि जनरिक एक आंसर हमने दे दिया, क्योंकि इंडिविजुअल केस पे हमें ये जैसे चेस होती है, हमें नेक्स्ट 4 स्टेप फॉलो वो देखने पड़ते हैं कि देखो आप ऐसा आंसर करोगे ना तो आगे से ये वो पूछेगा, आप ये करोगे तो ये बोला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस वी नो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। काउंटर वो करते हैं, दे आर वेरी 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 एक्सपीरियंस्ड। सो यू नीड टू मिक्स नंबर 1 योर ऑनेस्टी, you can't bluff friends, understand that you can't bluff, not revealing the information still is okay, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी still okay, but giving wrong information they will catch you। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ब्लफ कर दिया तो पकड़ लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी आपने 2 साल, उसको अगर आपने रिवील नहीं किया तो दे विल नॉट गेट टू नो ऑब्वियसली कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी। आप उसको रिवील ना करें,
समथिंग लाइक दैट. लेकिन अगर सपोज आप कुछ ब्लफ कर रहे हैं कि मैंने 2 साल में मैं कोई कर ही नहीं रहा था, मैं तो घर में बैठा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो पकड़ लेंगे आपको. फिर क्या कर रहे थे, कुछ तो कर रहे होंगे, उनको पता लग जाएगा ना शुभ्या. जैसे अगर आप बोलते हैं कि सब इंटरनेशनल रिलेशन में नॉलेज जो मेरी हॉबी है, 99% टाइम आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द रीजन उसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक सब्जेक्ट है. दैट द मोमेंट यू कम एंड देन आई स्टार्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि फिर बताओ ट्रम्प गवर्नमेंट का जो है वो फॉरेन पॉलिसी क्या है, फिर आप लगते हो आंसर करने. एंड आई नो इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट. अब मेरे को कोई ट्रबल नहीं है, आप यूपीएससी लिखो, लेकिन जब आप ब्लफ कर रहे हो ना तो मेरे को ट्रबल है. तो दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली. Anything, I think we have discussed more or less everything. Any question, anything we left, Shubha? So basically, so there are multiple domains. I think that Yeah. The student should be aware कि जब भी वो कोई practice कर रहा है, कोई भी aspirant है, तो he has to go for the case studies also. He has to go for the basic introduction, SWOT analysis शिखा मैम करवा रहे हैं, form filling के related क्या questions हैं, that is by Shruti ma'am. You are taking about the experience based questions, internships आते हैं आपने जो पहले किए हैं, projects जो handle किए हैं. Nishant takes about the finances, जैसे अभी क्या पास आउट, क्या आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, या बजट के रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट के रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके होम टाउन के रिलेटेड क्वेश्चंस. सो वी कैन नॉट कवर इन वन मल्टीपल सेशंस, बट या आई वुड से कि आप जितने स्नैप्स लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई हैव सीन दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू से एट द एंड आल्सो कि आई हैव सीन कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बट द मोमेंट दे कम एंड दे आंसर, दे आर नॉट एबल टू आंसर इवन इन वन लाइन एंड दे से मैम दोबारा से बोले, दोबारा से स्टार्ट करें. भी मैम बहुत बड़ा उनके लिए Exactly. डायलेमा है कि आंसर फ्रेम कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे बोलूं. दे एंड आंसर इन 5 लाइंस ओनली कि मैंने तो ये किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस है. आप देख लो. Exactly, that is your आप intelligent है, that is one part. Exactly. आप experienced है, that is one part. But how to present yourself, your presentation, your personality, that is another part, and that needs lot of polishing. And I think वो snap Practice से, करना. mock से, और ये documentation पढ़ो, सारी ये चीजों से ही I think वो cream out होती रहेगी. Yeah, so that I think we have more or less summarized, friends, everything. At the end, I just want to tell you, like, अगर आप 2, 4, 5 स्नैप या इंटरेक्शन भी लगा लेंगे, यू नेवर नो इट इज गोना हेल्प यू, बिकॉज इट इज नॉट ओनली व्हाट यू वांट टू से, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू शुड नॉट से. एंड कई बार आप इंटरेक्शन करते हैं, स्नैप्स लगाते हैं और मेंटर आपको कोई ऐसी बात बताते हैं कि ये बात मत बोल, अगर आप ये बात बोलोगे तो गलती हो जाएगी, वो आपको नहीं लेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है. और इट इज नॉट लाइक मेरे इंटरव्यू के लिए 3 दिन बच गए, 4 दिन बच गए. व्हाट मैटर्स इज सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. इफ यू रियली वांट दिस जॉब, फ्रेंड्स, seek the services of the mentors of your PDR. They will really help you and tell you where you stand, and उससे आपका confidence बढ़ता है. Look forward to mentor all of you. Thanks, friends, and I hope this helps all the candidates there. Thank you.